वोकेशन करेंगे हम लोग, प्रेयर करेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है? सब रेडी? एवरीवन इज रेडी? आर यू ऑल एक्साइटेड? नो? यस? प्लीज रेज योर हैंड। देखिए स्कूल में अटेंडेंस होता है ना, स्कूल में बोलते हैं प्रेजेंट मैम, मेरे को हरदम याद आता है वो प्रेजेंट मैम। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे रेस कीजिए हैंड। और एक और चीज है, लास्ट तक रहिएगा, लास्ट में जो रहेंगे ना तो आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग करेंगे एकदम लास्ट में, शुरू में नहीं करेंगे। जो भी लास्ट तक रहेगा आज, उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बीच में जहां मेडिटेशन खत्म हुआ और भाग भी जाए वो मत कीजिएगा। मेडिटेशन खत्म होने के बाद हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। सो लास्ट तक रहना है आपको, जो चला गया वो मिस कर जाएगा। यस? ओके, so let's put your hands together. Be aware of your heart. Think of a happy moment, especially the moment of life when we have been in very challenging times, but at that moment of time, someone within our friends, within our family, who came and helped us, who have shown love to us, and with that love, we regain our strength, as the love is the only thing, the love is only the fuel that helps a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power to excel in his journey of human life. This love of our family, our friends, our relatives is precious to us. Feel that love, gratitude, and respect for the person, for the friend, for the relatives, for showing love to us. Smile at them, smile at your heart. Be aware of your crown. Think of another happy moment. This time the moment when God, when our spiritual guru, when nature sent someone with whom we have no physical foundation, with whom we have no blood relations, with whom we have never met, but he or she comes in our life with so much love that gives us another hope to do something in life. Feel that love, that happiness, that joy once again, and smile at your crown. It's only because of the activated crown we have been able to attract this loving soul in our life. Be aware of your heart, be aware of your crown. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Divine Providence, with the blessing of whom everything is possible. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, inner healing, physical healing. Thank you for the inner strength to do what is right and refrain from unwholesome thoughts, actions, and behavior. With divine help and divine protection, with illumination, abundance, prosperity, with wisdom, discernment, goodwill, and the will to do good. To all the spiritual teachers
holy masters, holy saints, archangels, holy angels, spiritual helpers. Thank you all for your priceless presence. With lots of gratitude, respect, and love. Thank you. With God's blessings, everything is possible. With God's blessings, we can change our destiny. With His presence, everything is possible. With thanks and with lots of gratitude, respect, and love. Thank you. I, the soul, salute the divinity within all of you. I, the soul, salute the spirit within all of you. Namaste in full faith. So be it. So, सबसे पहला, everyone now agrees that we can change our destiny. Yes, please raise your hand. And please raise your hand fast. इतना सोचने का क्या काम है? अगर आप पहले से अटेंड कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से आप बिलीव कर रहे हैं तभी वापस आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आते थर्ड सीरीज के अंदर में भी. Yes, yes. So if you believe that you can change your destiny, then what is the next? What is next? The next is we have to understand how we can change our destiny. And to know how we can change our destiny, the root is that we have to understand what is law of karma. Since the beginning, when we have born till now, we have been listening to this. जैसा बीज बोगे वैसा ही मिलेगा. What you sow, so you reap. और ऐसे करते करते हम लोग बड़े होते गए. बट कभी भी हम लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हुआ. ये सिर्फ बोलने के लिए था. This is only just to say, not to believe. ये कब बोलने के लिए था? जब कोई मेरे साथ बुरा किया तब हम ऐसा बोलते थे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा. परंतु जब हमको अच्छा काम करने का बात आती थी तब हम बोलते थे यार ऐसा कुछ नहीं होता है. तब अगर हम ऐसा नहीं भी बोले तो हमारे मन में ये डाउट रहता था कि यार अच्छा करेंगे तो मिलेगा, देखो वो तो कितना गलत कर रहा है फिर भी उसको तो अच्छा ही मिले जा रहा है. क्यों? इस बारे में क्यों हमारे अंदर में ये संस्कार रहती थी? इसलिए क्योंकि इसका रियल तरीका नहीं मालूम था. इसके पीछे का साइंस हम लोग ठीक से नहीं समझते थे. हम लोग इसको बहुत लिटरल सेंस में ले लिए थे. इसका साइंस नहीं समझने का कोशिश की. The thing is that we have to understand the science behind this. And friends, my teacher, my spiritual teacher, Grandmaster Chokoksui, he has explained this law of karma in so simple form, and believe me, it took a lot of time for me to understand this. Almost I'm in pranic healing for last 13 years. Initially 4 to 5 years I was accepting it only on a literal way. I was not completely accepting this. But when the life throws a challenge on me, and then when I try to understand it, जब मैं उसको समझने का कोशिश करना चालू कर दिया, जब मेरे को समझ में आने लग गया और मैं वर्ड टू वर्ड उनके उस वर्ड टू वर्ड को फॉलो करने का कोशिश किया, तब मेरे को रियलाइज होने लग गया लाइफ के अंदर में कि लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स एंड इट इज एग्जैक्ट. लॉ ऑफ कर्मा काम करता है और ये एग्जैक्ट है. सो सबसे पहले लॉ ऑफ कर्मा के अंदर में 3 बातों को ध्यान रखना है. लॉ मतलब क्या होता है? लॉ इज नथिंग बट लाइक वी से प्रिंसिपल्स, एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रिंसिपल. 2 तरह के प्रिंसिपल होते हैं ना. एक आता है PRINCIPAL और एक आता है PRINCIPLE. तो कौन सा PAL में जाना है कि PLE में जाना है? आपके अनुसार कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए? PAL कि PLE? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं ना. तो ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, बट लॉ ऑफ कर्मा एक्ट्स लाइक अ प्रिंसिपल ओनली. PAL की तरह ही काम करता है, वो भी एक प्रिंसिपल ही है, बट द लॉ, द प्रिंसिपल PLE, हम लोग 2 तरह से बनाते हैं उसको भी. एक प्रिंसिपल जो हम लोग बनाते हैं
और एक प्रिंसिपल जो नेचर बनाता है। हम लोग जो प्रिंसिपल बनाते हैं वो कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है कि 31 दिसंबर की रात को हम लोग बोलते हैं नया साल आने वाला है और एक रिजोल्यूशन लेते हैं और वो बोलते हैं ये मेरा प्रिंसिपल रहेगा इस साल के लिए, ये मेरा प्रिंसिपल रहेगा इस साल के लिए। और वो जब 1 तारीख आती है मॉर्निंग में तब तो सोते ही रहते हैं, फिर दूसरे दिन तक पता चलता है कि यार ये ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, तीसरे दिन तक तो पूरा ही माइनस कर देते हैं उसको। क्लियर? यस। वैसे ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बनाते हैं, एक सिद्धांत बनाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम इस साल झूठ नहीं बोलेंगे। वो मेरे को झूठ बोला कैसे, मेरे को झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कुछ देर बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, उस समय में बोलते हैं कुछ उपाय नहीं है यार, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा मेरे। तो चेंज हो गया ना वो प्रिंसिपल सेट करके। बट यहाँ जो हम लोग लॉ के बारे में, लॉ ऑफ नेचर बोले चाहे लॉ ऑफ कर्मा बोले, ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल आप कहीं पर भी जाइए, चाहे आप इंडिया में रहिए, चाहे अमेरिका में रहिए, चाहे कहीं पर भी रहिए, ये फॉलो होगा ही। आप अगर अर्थ पे हैं तो ये फॉलो होगा ही, क्योंकि अर्थ पे अगर आप हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप चाहे अमेरिका में जाइए तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, चाहे आप यहाँ रहिए तो यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। वैसे ही ये लॉ ऑफ कर्मा है और ये लाइफ में उसी तरह से काम करता है। ओके, आर वी एग्रीइंग टू दिस? यस, रेज योर हैंड। ओके, गुड। सो नेक्स्ट, ये तो अपने को समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कर्मा इज अ प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो एंड इट इज एग्जैक्ट। नाउ नेक्स्ट वी कम is what are the 3 type of law within this law of karma? तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं? हजारों साल पहले जब हम लोग को ये बताया गया था, कृष्णा ने बताया था ये चीज, तो जो आम लोग थे उन लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं था, या उनका मेंटल इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो इसीलिए उनको क्या बताया गया, वो लोग फार्मर थे तो उनके लैंग्वेज में उनको समझाया गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना परफेक्ट चीज है। पहला क्या है? जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। इसका मतलब है कि हम आम का बीज बोलेंगे तो मेरे को आम ही मिलेगा ना। If I sow a seed of bamboo tree, तो I will get a bamboo tree only ना। Yes, and this is exact whether you do in America, whether you do in India। आप ये सीड डालोगे तो यही फल मिलने वाला है। Yes, so this is true with all of us also। Now comes कैसा बीज डालोगे। Now the बीज is the action। The seed is what? Seed is an action। Seed is what? Action। तो हम लोगों को अब कर्मा के बारे में सोचना। कर्मा इज व्हाट? कर्मा इज एक्शन। तो नाउ द कर्मा कितना फॉर्म का हो सकता है? जो फिजिकली हम लोग करते हैं काम, वो भी एक कर्म है। यस। जो हमारे अंदर में इमोशंस जो आते हैं वो भी एक कर्म है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो भी एक कर्म ही तो है। जो हम मुंह से बोल रहे हैं वो भी एक कर्म है। यस और नो? जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं वो भी एक कर्म है। जो मेरे यहाँ से विचार निकल रहे हैं वो भी एक कर्म है। यस, ऑल आर एक्शंस। तो व्हाट टाइप ऑफ सीड यू आर सोइंग? तो ये जो एक्शन है, इस एक्शन में हम क्या कर रहे हैं वो सीड होता है। इस एक्शन में जो हम सीड क्या होगा? जो अभी समझ थॉट आया, किसी के बारे में अच्छा थॉट आया, तो मेरा सीड क्या होगा? अच्छा सीड हुआ। वो चाहे मेंटल लेवल पे हुआ हो तो अच्छा सीड हुआ। वैसे मेरे अंदर में किसी के बारे में अच्छे इमोशंस आए तो कौन सा सीड हुआ? इमोशंस का। तो समझिए लव आपके अंदर में आया किसी चीज के लिए, तो कौन सा सीड हुआ? लव का इमोशंस हुआ ना। उसी तरह से आपके अंदर में कुछ आया और आप किसी को हेल्प कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को खाना खिला दिए, तो फिजिकली आपने दिया ना, तो क्या किया आपने? एक्शन किया। कौन सा सीड बोया आपने? खाना खिलाने का सीड बोया। एक्शन था खाना खिलाना, परंतु सीड कौन सा हुआ? खाना खिलाना। मतलब किसी का पेट भरा, वो एक सीड था। तो उसका फल क्या होगा? अगर जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसका मतलब अगर किसी को खाना खिलाने का बीज बोए हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको भी खाना मिलेगा। अब आप नेक्स्ट बोलेंगे, अरे लो हम खाना खिलाएंगे, हम तो कमाते हैं, हम उसे अपना मेरा हम खाना खा लेते हैं।
कोई से थोड़ी हम लेने जाने हैं, हमको खाना खाने के लिए हम किसी को खाना खिलाने गए और हमको कोई खाना खिलाएगा, हमारा ऐसा थोड़ी दिन ना गया, लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं। बट फ्रेंड्स बिलीव मी, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप अगर किसी को खाना खिलाए तो आप बिलीव कीजिए आपके लाइफ में कभी भी आपको खाने की कमी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा का सेकंड रूल क्या है? पहला है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा क्या है? आप एक बीज बोते हैं तो एक ही फल मिलता है। आम का बीज अगर आप बोए तो उसका एक ही फल, एक ही आम मिलेगा, कई आम मिलेंगे? कई आम मिलेंगे ना। तो वैसे ही आपको अगर आपने किसी को खाना खिलाया है तो आपकी लाइफ में भी खाना आएगा। खाना आएगा इन द सेंस आपके पास में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मनी का ऊपर नीचे हो सकता है परंतु खाने का ऊपर नीचे नहीं होने वाला। ऊपर नीचे सिर्फ हमारे इमोशंस में होने वाले हैं। डाउट, हमारे अंदर में डाउट रहने वाला है कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज सिचुएशन ऐसा हो गया तो। परंतु बिलीव मी माय फ्रेंड्स, खाना तो मिल जाता है, चाहे कैसे भी मिल जरूर से जाता है। समझ रहे हैं आप? आर यू एग्रीइंग टू दिस? तब अपने नेक्स्ट जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आप ये बोलते हो यार ठीक है खाना मिल गया, खाना तो मिल जाएगा मेरे को, परंतु अरे हम आज खाना नहीं खिलाए तो जरूरी थोड़ी है कि आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिस टाइम में आपके मन में ये आए कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ की जो साइकिल होती है वो क्या ऐसी होती है क्या? सिर्फ ऐसी होती है क्या? साइकिल ऐसे ऊपर जाती है क्या? नहीं, लाइफ की साइकिल भी तो ऐसे होती है ना। हार्ट बीट देखे? हार्ट बीट ऐसे जाता है ना लाइफ का साइकिल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो लाइफ के अंदर में कभी भी ऐसा चीज आ सकता है, सिचुएशन आ सकता है कि जब एक बार नीचे जाए। ठीक है, तो अगर जब ये नीचे जा रहा है उस समय में समझ लीजिए मॉनिटरी नीचे जा रहा है, तो मन में थॉट आते हैं ना कि कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है ना। आपको नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु ऐसा अगर आप किसी के साथ एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे तुम्हारे पास तो इतने पैसे थे, अचानक तुम्हारे मन में ऐसा क्यों थॉट आने लग गया। तो क्या उसको इमीडिएटली ऐसा चैलेंज आया लाइफ में? नहीं आया ना, टाइम लगा उसको, उसके लाइफ में ये चैलेंज आने में टाइम लगा। पर जब वो चैलेंज आया उस समय में क्या हुआ, उसको बेनिफिट किस चीज का हुआ? जो एक समय में वो खाना खिला के रखा था उसके कारण से उसको आज भी खाना मिल रहा है। यस, मिल रहा है उसको। इसका मतलब क्या है? आज अगर हम बीज बोए हैं तो उसका फल जो है इमीडिएटली नहीं मिलने वाला। आम का बीज अगर हम आज बोएंगे तो क्या कल ही सुबह आम उग जाएगा? नहीं ना। अपने अगर देखें, अगर फिजिकल इनकारनेशन के बारे में भी सोचें तो एक बच्चा जो होता है वो 9 महीना लगता है फिजिकल बॉडी में आने के लिए। 9 महीना आगे बीज डाल दिया जाता है, परंतु क्या दूसरे दिन निकल के आ जाता है क्या बाहर? नहीं ना, 9 मंथ्स लेता है वो निकलने के लिए। यस और नो? तो ऐसे ही हर हर फ्रूट का है। वैसे ही आप जो कर्म किए हैं उस कर्म का भी एक समय होगा। इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जैक्ट। यस। सो आप जैसा भी करो, आप अगर अच्छा किए हो तो अच्छा मिलने वाला, अगर खराब किए हो तो खराब मिलने वाला। मैं शायद लास्ट टाइम भी एक स्टोरी बताया था आपको, मैं आज 2 स्टोरी शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम भी शेयर किया था, शायद इस टाइम भी शेयर कर रहा हूँ, सेम ही स्टोरी हो सकती है, मेरे को याद नहीं मैं लास्ट टाइम क्या शेयर किया था। तो फिर भी मैं फिर शेयर करता हूँ। एक बाइबल की स्टोरी है जिसके अंदर में एक जेकब नाम का लड़का रहता है और वो अपने फायदे के लिए, अपना कुछ फायदा लेने के लिए अपने फादर को बेवकूफ बनाता है, जिससे कि उसका जो भाई होता है ईसाऊ, उसको जो बेनिफिट मिलने वाला होता है वो बेनिफिट उसको मिल जाता है। और उसको ये बेनिफिट मिलने से उसका जो भाई है वो पागल हो जाता है। उसका भाई पागल हो जाने से उसके जब फादर को पता चलता है कि ये इसको बेवकूफ बनाया, तब वो उसकी मदर जो है उसको भगा देती है वहां से और वो अपने किसी कजन के पास में पहुंच जाता है और वहां जाके वो काम करने लग जाता है। जब वो वहां काम करता रहता है तो उसकी बेटी से उसको प्यार हो जाता है। उसकी बेटी से जब उसको प्यार होता है तो वो अपने उसको जाके बोलता है कि मेरे को आपकी बेटी से शादी करना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको शादी, तुमको शादी करना है, कोई बात नहीं, 7 साल मेरे पास में काम करो, उसके बाद तुम शादी, मेरी शादी करा देंगे। वो 7 साल वहां काम करता है और उसके बाद उसकी शादी होती है। बट वो क्या करता है, वो अपनी दूसरी बेटी से शादी करा देता है। और वो उसको क्यों नहीं पता चलता है?
उसको इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि उन लोग के क्रिश्चियंस में क्या होता है, वो वेल पहनते हैं ना, वेल तो चेहरा नहीं दिखता है, तो इसीलिए लोग समझ नहीं पाता है, तो शादी के बाद उसको समझ में आता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सबके माइंड में चल रहा होगा, ये कैसे हो सकता है, उसको पता नहीं चलेगा, शादी करने जा रहा, चेहरा नहीं देखा होगा, तो वो वहां पर ऐसा सिचुएशन हो जाता है। जब वो देखता है तो जाके अपने वापस जाके बोलता है कि मेरे को तो इससे शादी नहीं करनी थी, तो बोलता कोई बात नहीं, 7 साल और काम कर लो मेरे पास, फिर शादी कर लो। तो 7 साल और काम करता है और फिर वो जिससे प्यार करता है उसी से शादी होती है। तो क्या इसके लाइफ में ऐसा हुआ क्या कि अगर ये एक बार गलती किया तो बाद में भगवान उसको अच्छा चीज नहीं दिया, तो जिसको प्यार करता था वो दिया ना उसको, उसी से शादी करने का मौका मिला ना उसको, मिला कि नहीं मिला? तो उसके साथ लाइफ में अच्छा भी हुआ, क्योंकि अच्छा कुछ किया हुआ था उसका, अच्छा उसको मिल गया। बट वो झूठ बोला था तो उसको झूठ बोला गया, वो धोखा दिया वहां पर, इसको यहाँ पर भी धोखा मिला। परंतु उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके 3 बच्चे होते हैं, और उसमें सबसे छोटा वाला बच्चा से उसको बहुत प्यार रहता है। एक दिन बाकी जो बड़े बच्चे होते हैं वो उसको बोलते हैं कि वो छोटा वाला बच्चा को जंगल में जो है जानवर लोग ने मार दिया। वो ये सुनते ही पागल हो जाता है और जंगलों की तरफ भाग जाता है। अब देखिए, सबसे पहला बीज कितने साल आगे बोया था ना, पागल, उसके झूठ बोलने से पागल हुआ। कौन? उसका भाई। तो क्या उसका भाई आके उसको पागल बनाया, या उसका भाई आके उसको झूठ बोला? नहीं ना, कोई और आके बोला। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि देखिएगा, भगवत गीता में दिया हुआ है ना ये बात, तुम कर्म कर फल की आशा मत कर, तुम कर्म कर फल की आशा मत कर, कर किससे? मुझसे, उससे नहीं जिसके लिए तुमने किया है। इसका मतलब क्या है? भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कर्म तो करते हैं, करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जिसके लिए कुछ करते हैं उसी से एक्सपेक्टेशन लेते हैं। मतलब उस भगवान बोलते हैं उससे मत आशा करो, आशा मेरे से करो, हम तुमको देंगे। कैसे देंगे वो मेरे ऊपर है। वो हम भेजेंगे आदमी को, कैसे भेजेंगे वो मेरे ऊपर में, बट विश्वास रखो मेरे ऊपर में। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट है। यस, आर वी एग्रीइंग? ये स्टोरी से कुछ समझ में आया? लॉ ऑफ कर्मा का तीनों एस्पेक्ट समझ में आया? उसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग है महाभारत के अंदर में। महाभारत के अंदर में धृतराष्ट्र जब उसके 100 बच्चे मर जाते हैं तो वो अपने पास्ट लाइफ को देखता है। कितने जन बिलीव करते हैं कि पास्ट लाइफ होती है? रिएक्शन वाला मोड से हैंड रेज करके बताइए। रिएक्शन जो है ना, राइट साइड में नीचे में देखिए, रिएक्शन बोल के बटन है, उस बटन में जाइए, वहां पर देखिए हैंड रेज होगा, उसको क्लिक कीजिए। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो सबको टेक्नोलॉजी भी सिखा देते हैं, खाली लॉ ऑफ कर्मा सिखाने से नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी आप सीखे, आपको सिखाएंगे तो मेरे लाइफ में भी कोई मेरे को टेक्नोलॉजी सिखाने आ जाएगा। ओके, सो हम लोग सब बिलीव करते हैं कि पास्ट लाइफ होती है। तो वैसे ही धृतराष्ट्र जो है वो अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं और वो देखते हैं कि लास्ट 100 ईयर्स में बहुत अच्छे किंग थे और बहुत अच्छे कर्म किए थे। तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि यार, जब मैं 100 जन्म, लास्ट 100 जन्म के अंदर में इतना अच्छा किंग था और इतना अच्छा काम किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे 100 के 100 बच्चे मर क्यों गए? मैं अंधा पैदा क्यों हुआ? उनके मन में एक क्वेश्चन था। तो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और ये बात पूछते हैं। तो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और ये बात पूछते हैं कि मैं तो अपने 100 इनकारनेशन पीछे जाके देख लिया, मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं मिला। तो श्री कृष्ण बोलते हैं तुम एक इनकारनेशन और थोड़ा सा पीछे जाके देखो। और वो एक इनकारनेशन जब पीछे जाके देखते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि उस समय में वो एक बहुत बदमाश टाइप जो होता है ना, जो जिसको किसी के लिए वो नहीं होता, वैसा किंग था। और वो क्या होता है कि वो जाते हैं, वहां पर एक स्वान होता है, तो श्वान को देखते हैं और उसके 100 बच्चे रहते हैं। तो वो अपने इंस्ट्रक्शन देख के, जो रहते हैं ना लोग जो साथ में राजा के साथ रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और मजा लेने के लिए वो उसके आंख में तीर छोड़ देते हैं और बाकी 100 बच्चों को भी मार देते हैं। तो उन्होंने कौन सा कर्म किया था? एक पहले जो बच्चे थे उनके फादर या फादर का जो है आईज ले लिए,
दूसरा चीज है, बाकी 100 के 100 बच्चे थे, उनको भी मार दिए, खाली मजा लेने के लिए, सिर्फ मजा लेने के लिए। उन्होंने कौन सा बीज बोया था? अंधा बनाने का। उन्होंने कौन सा बीज बोया था? 100 बच्चों को मारने का। वो चाहे जानवर प्रकृति में थे, उनका जिनको मारे थे वो लोग जानवर बोला जाता उनको, ठीक है, तो भी क्या हुआ? कर्म तो था ना वो। परंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब तुम्हारे एक इंसान के लाइफ में 100 लड़के होना, 100 लड़के होना, वो भी एक ही जन्म में, उसके लिए बहुत कर्म करना पड़ता है, बहुत कर्म करना पड़ता है। इसीलिए 100 जन्म तक तुम इतने अच्छे कर्म किए थे, और उसका फल तुमको कभी मिलेगा जब जिस जन्म में तुम अंधे होगे। तो इस जन्म में जब समय आ गया था मैच्योरिटी का, वो जो वहां डिपॉजिट किया था ना, फिक्स डिपॉजिट करके रखा था वहां पे, तो फिक्स डिपॉजिट की एक टाइम होती है ना मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी की टाइम आ गई थी। तो जब बोला कि मैच्योरिटी की टाइम आ गई है, क्योंकि इतना कर्मा इकट्ठा कर चुका है, जहां इसको 100 बच्चे मिलने वाले हैं, तो अब इसको अंधा बनाना पड़ेगा। इसीलिए वो बाई बर्थ अंधा हुआ। सो बीज कौन सा बोया, फल कितना 100 जन्म के बाद में मिला उसको, समय लगा, जैसा बीज बोया वैसा ही फल मिला उसको, मिला ना उसको। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। अब नेक्स्ट अपने मन में क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें? अब हम भी तो लाइफ में बहुत कुछ किए हैं, किसी का 30 साल होगा, किसी का 40 साल उम्र होगा, किसी का 50 साल होगा, किसी का 20 साल उम्र होगा, सब सोच तो रहे होंगे यार कुछ तो हम भी किए हैं अभी तक। मन में तो खुल 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 हो रहा होगा, अरे ये कर्मा तो ऐसा है, अच्छा किए तो अच्छा मिलने वाला है, बुरा किए तो बुरा मिलने वाला है। अरे कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, कौन कौन से बुरे काम किए हैं, चलो चलो फटाफट नोट डाउन करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। हिसाब किताब करने का मन कर रहा है कि अच्छा क्या किए, खराब क्या किए? मन में कुछ चिंता हो रही है? यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे गुरु ग्रैंड मास्टर चौकसी बोलते हैं कि अगर कर्मा एग्जिट है, तो आज मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास्ट में मैंने कुछ किया है। तो अगर आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो पास्ट में मैंने अच्छा किया है, बट आज मेरे साथ में बुरा भी हो रहा है तो मेरे पास्ट में मैंने कुछ किया है। और सीजन होता है, हर सीजन में तो हम लोग का ऐसा थोड़ी है कि आज आम का बीज बो दिए तो 10 साल तक हमको आम का फल मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए अब आज करंट में अगर हम जो भी बीज बोएंगे वही मेरे को फ्यूचर में मिलने वाला है। तो आज से हम लोग अच्छा बीज बोना चालू कर दें तो मेरी डेस्टिनी भी उसी तरह से होने वाली है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं, एंड बिलीव मी हॉरोस्कोप इज अ वेरी गुड साइंस। अगर किसी को बहुत अच्छा हॉरोस्कोप देखना आता है वो बहुत अच्छा बता सकता है, परंतु ये हॉरोस्कोप भी चेंज हो जाता है। अगर आप लॉ ऑफ कर्मा को ठीक से फॉलो कर लिए तो आप अपना हॉरोस्कोप भी चेंज कर सकते हैं वे, बट आपका जो हॉरोस्कोप रीडिंग होगा वो रीडिंग गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि आप कंसियसली चला के आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हो। इसीलिए बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे हॉरोस्कोप रीड करने वाले लोग भी गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो तो सिर्फ आप जब जन्म लिए थे ना, जन्म के समय में आपका जो नक्षत्र था वो नक्षत्र किस बेसिस पे था? जो भी चार्ट्स थे दैट वाज बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा बिफोर यू टेक अ बर्थ, उसके आगे आपने जो भी कर्मा किए थे उसके अनुसार ये हॉरोस्कोप है। तो वो क्या होता है, वो उस बेस्ड में आपको बताता है कि आपके पास्ट में ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो मिलने लग जाता है। और वो बेस्ड ऑन दैट प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में भी यही होने वाला है, क्योंकि आपका नेचर तो वही है ना। हेयर कम्स लॉ ऑफ कर्मा। कैसे? याद होगा आपको फर्स्ट सेशन में मैं एक बात बोला था कि अगर आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख जाओ, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओ, तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। कैसे? अगर आपके थॉट्स में कोई गलत बात आई तो आपका इमोशंस रिएक्ट करता है, एक्ट नहीं करता है। जब इमोशंस रिएक्ट करता है तो आप फिजिकली एक्ट नहीं करते हो, आप रिएक्ट करते हो।
जब आप फिजिकली रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, वो बिहेवियर पैटर्न बनने लग जाता है आपका। जब वो कॉन्स्टेंटली वो बिहेवियर पैटर्न बनने लग जाता है तो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन होने लग जाता है। लोग आपके बारे में वही बात बोलने लग जाते हैं, और वो जब कैरेक्टर बनने लग जाता है तो धीरे धीरे वही उसी तरह की डेस्टिनी हो जाती है ना। दिस इज ऑल अबाउट अ सक्सेसफुल पर्सन। कोई आदमी सक्सेसफुल होता है तो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली एक ही काम किए जाता है, एक ही काम किए जाता है, एक ही काम किया जाता है, और उसमें उसको परफेक्शन आ जाता है। और जब उसको परफेक्शन आ जाता है तो लाइफ में सक्सेस मिल जाता है उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को सबको मालूम है कि मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल हुए हैं आज तक, उन लोगों का एक नेचर है, मॉर्निंग में 5 AM पे उठते हैं वो लोग, उनका एक नेचर होता है। अपने आसपास में जो सक्सेसफुल है उनको मत सोचिए, वो सोचिए जो लोग रियल में कंसिस्टेंटली सक्सेस पाए हैं। उनका एक नेचर होता है, उनका एक मॉर्निंग में एक उठने का टाइम होता है, उनका एक नेचर होता है कि मॉर्निंग में वो अपने बॉडी के ऊपर में भी काम करते हैं। हो सकता है कुछ पीरियड के लिए नहीं किए होंगे, बट वो लोग कॉन्स्टेंटली करते हैं फिर, और वो कॉन्स्टेंटली करते रहते धीरे धीरे देखिएगा उनका वो नेचर हम लोग को ये मालूम है, पर तो हम लोग खुद नहीं करेंगे। हमको चाहिएगा कि मेरे लाइफ में पैसे ऐसे आ जाएं, हमको चाहिएगा मेरे लाइफ में कोई भी प्यार मेरे को ऐसे दे दे। जब तक हम अपने आप को प्यार करना नहीं सीखे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से प्यार ले लें। आप जब तक अपने शरीर के बारे में नहीं सोचे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे आपके लिए सोचे। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आपको अपने बॉडी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो फिजिकल बॉडी है जो आपको सब कुछ देने वाली है, अगर ये फिजिकल बॉडी ठीक नहीं रहने वाली तो आप क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी डेस्टिनी तो कभी नहीं चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला काम ही हमारा अपना फिजिकल बॉडी का टेक केयर करना। सेकंड अपने लोग का क्या है कि जब तक मेरे इमोशंस ही अच्छे नहीं होंगे तो हम कैसे किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसी एनर्जी होगी वैसा ही अट्रैक्शन होगा ना। तो मेरे अंदर में इमोशंस अगर एंगर के हैं तो मैं एंगर ही अट्रैक्ट करूंगा ना। मेरे अंदर में इमोशंस लव के हैं तो लव अट्रैक्ट करूंगा। और अपने ये भी बात बोलते हैं ना कि एक ही तरह के सोचने वाले लोग ही एक ही जगह मिलते हैं ना। कायनात सबको एक जगह मिला देती है अगर एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं। तो मेरा थॉट जैसा होगा हम उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। मेरे थॉट्स में अगर खाली डाउट ही डाउट है हर वक्त हर किसी को लेके, तो मेरे आसपास भी वो डाउट वाले लोग ही आ जाएंगे। बट मेरे अंदर में एक थॉट है फेथ का, तो फेथ जैसे लोग ही आ जाएंगे, जो फेथ करते हैं वैसे लोग आ जाएंगे। मेरे अंदर में थॉट्स है हेल्प करने का, तो हेल्प करने वाले लोग ही आपके पास आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जैक्ट, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। बट नाउ द थिंग इज कि ऐसा नहीं होता है कि लाइफ के अंदर में अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसे गए ऊपर, उसके बाद नीचे गए, और फिर उसके बाद आप उनको इस जन्म में वापस उठता हुआ नहीं देखते हो, वो लोग फिर नहीं उठ पाए। और तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे गए फिर एक झटके से नीचे आए और फिर वापस ऊपर चले गए, और अब की बार जब ऊपर गए तो पहले से भी ज्यादा ऊपर चले गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे अपने अमिताभ बच्चन जी, ऐसे गए झटके से खाए नीचे फट करके वापस ऊपर चले गए। क्यों? मे बी अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री जाने, हमको नहीं मालूम उनकी लाइफ हिस्ट्री, बट ऐसा लगता है कि जब ये ऊपर जा रहे थे क्योंकि अपने पास्ट कर्मा के कारण ऊपर जा रहे थे, और जब ये ऊपर जा रहे थे उस समय में भी उन्होंने गलत करना चालू नहीं किया। परंतु जब वो नीचे आए बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा, उसके आगे का कर्मा मैच्योरिटी जब आने वाला था, जब वो मैच्योरिटी आने वाला था, ये जब ये ऊपर जा रहे थे उस समय में जो अच्छा कर्म कर रहे थे उस कारण से वो हेल्प मिला उसको वापस ऊपर ले जाने में। और ऐसे ही आप बहुत सारे एक्टर्स के बारे में भी देख सकते हो, बहुत सारे लोगों के बारे में, खाली एक्टर्स बहुत सारे लोगों के बारे में देख सकते हो जो ऊपर गए बट उसके बाद फिर नीचे नहीं आए, फिर ऊपर नहीं गए फिर नीचे ही आ गए। क्यों? क्योंकि जब ऊपर जा रहे थे तभी भी गलत काम करते जा रहे थे। जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना बहुत कि हम लोग के आसपास हम ऐसे देख रहे हैं वो इतना गलत किए जा रहा है फिर भी उसके साथ लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। वहां पर क्या है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। देर है पर अंधेर नहीं है वहां पे। इसका मतलब है ये ऊपर जा रहा है बट इस सिचुएशन में और खराब किए जा रहा है, तो उसका पास्ट का जब आएगा मैच्योरिटी गिरने का, तब ये जो किया हुआ है ये भी उसको हेल्प नहीं करेगा वापस उठने के लिए, वो और नीचे गिराएगा उसको।
उस समय में हो सकता है हम लोग ध्यान ही नहीं दें उस बात को, बट उसको अभी ऐसा देखते हुए हम भी उसी के साथ लग जाते हैं और साथ में हम अपना कर्मा को खराब कर लेते हैं। सो अब क्या करना है हम लोगों को? कर तो दिए, गलत जो कर दिए कर ही दिए, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे कि हम लोग कम से कम इसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ में कम हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ ये एक्चुअल में मैं अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया हूँ। जब कभी आप मेरे पास मेरे से क्लास करने आओगे, कभी भी बेसिक क्लास करने आओगे प्राणिक हीलिंग का, तो मैं जरूर से आपसे शेयर करूंगा उस समय में, क्योंकि मैं क्लास के अंदर में शेयर करता हूँ अपनी पूरी लाइफ, और मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको बता सकता हूँ कि मेरे लाइफ में कब कब कैसे कैसे क्या हुआ, और आप उसको को रिलेट कर सकते हो कि अच्छा लॉ ऑफ कर्मा इस तरह से काम किया लाइफ में। तो अभी अपने पास बहुत छोटा टाइम है, इसीलिए नहीं, क्लास के अंदर में क्या होता है, 2 दिन पूरा रहता है मेरे पास में, तो 2 दिन मैं पूरी अपनी लाइफ की हिस्ट्री आपको बताते रहता हूँ, और लॉ ऑफ कर्मा आप पूरा उसी तरह से अब पूरा समझ सकते हो कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। इसीलिए मैं इतने बिलीव के साथ, फेथ के साथ बोलता हूँ कि अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। सो सिंपल है, अब गलत कर दिए तो कर दिए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, परफेक्शन कभी भी ऐसे नहीं आता है, परफेक्शन आने के लिए गलती करना पड़ता है। जो आदमी ये सोचता है कि बिना गलती किए हमको परफेक्शन मिल जाएगा, वो सबसे ज्यादा डिल्यूशन में है। ओके, सो यहाँ पर सिंपल रूल्स है, अगर हमको अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है तो सिंपल रूल है, दूसरों के साथ वही करो जो तुमको अपने साथ चाहिए, दूसरों के साथ वो मत करो जो तुमको अपने साथ नहीं चाहिए। अगर तुमको चाहिए मेरे लाइफ में प्यार होना चाहिए तो दूसरों को प्यार दो। अच्छा, प्यार का डेफिनेशन थोड़ा सा, अब जब हम प्यार प्यार बोलते हैं तो आदमी सिर्फ एक ही सोचता है, वो वही प्यार, वही प्यार, प्यार बहुत तरह का होता है भाई, ठीक है, वो एक ही तरह का प्यार नहीं होता, बहुत तरह का प्यार होता है। सो अगर हमको अपने लाइफ में चाहिए कि लोग हमसे प्यार करें, तो हमको भी दूसरों को प्यार देना सीखना पड़ेगा, कितना भी कुछ हो जाए। इवन सामने वाला तमाचा मार के भी चला जाए तो भी प्यार करना सीखना पड़ेगा आपको। और अगर चाहिए कि दूसरे लोग आपको हर्ट नहीं करें, तो आपको भी दूसरों को हर्ट करना बंद करना पड़ेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, बोलना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। हाँ, प्यार करना बहुत आसान है, हर्ट नहीं करना इज नॉट इजी। मैं ये बोल सकता हूँ प्यार करना बहुत आसान है, उसमें कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है प्यार करना, परंतु किसी को हर्ट नहीं करें इस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो हम हर्ट नहीं करें उसके लिए हमको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मालूम आपको? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर हम हर्ट नहीं करें तो सबसे पहला बात है हमारे सिस्टम में प्यार की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि अगर वो हर्ट भी हो तो प्यार का मजहम से वो पूरा हो जाए, पहला चीज। दूसरा चीज है, हमारे अंदर से वो हर्ट एनर्जी को निकालना पड़ेगा। हर्ट एनर्जी हमारे अंदर में, हर्ट एनर्जी है इसीलिए हम हर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं सामने वाले की तरफ से कि हम हर्ट करते हैं। पहला चीज कि हमारे अंदर से हर्ट की एनर्जी को निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज है, हमारे अंदर में भी तो वीकनेसेस हैं, खाली हमारे अंदर में स्ट्रेंथ ही तो नहीं है, हमारी वीकनेसेस भी हैं, तो हमारे वीकनेसेस पे भी काम करना पड़ेगा। जब हम इस बारे में बात करते हैं ना, तब आ जाता है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, 5 वर्च्यू फॉलो करने से हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ 5 वर्च्यू फॉलो करेंगे हम लोग कर सकते हैं। और 5 वर्च्यू क्या है? सिंपल है, सबसे पहला हम लोग लव से रिलेटेड करते हैं, लव, सबसे पहला वर्च्यू है लव, कि दूसरों को प्यार दो, दूसरों को हर्ट मत करो। तो जब हम प्यार दो बात करते हैं तो फिजिकली भी प्यार है, फिजिकली प्यार है कि हम किसी को हेल्प कर दिए एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, किसी को कोई काम के लिए हेल्प कर दिए। इमोशनली क्या है कि हम इमोशनली क्या है, अप्रिशिएशन वर्ड्स यूज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, वर्बली हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, मेंटली हम लोग उनको लव करते हैं। जैसे हम लोग ट्यून आउट मेडिटेशन में करते हैं, ट्यून आउट मेडिटेशन में क्या हम लोग खाली ब्लेस करते हैं ना,
एंड विथ लव, विथ पॉजिटिव वर्ड्स, इन सब चीजों से ब्लेस करते हैं। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। बट अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप हर्ट नहीं चाहते अपने लाइफ में, कोई ना आपको फिजिकली हर्ट करे, ना कोई आपको वर्बली हर्ट करे, ना कोई मेंटली हर्ट करे। तो सबसे पहला आता है कि हमको इसको बंद करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर से ये जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, हर्ट कैसे होता है? एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एनवियसनेस, जेलसी, ये जो है ये हमारे अंदर से खत्म करना पड़ेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं होने वाला। हाँ ये जरूर है, जो आर्थिक योगा किए हैं उनको मालूम है कि इसको कैसे निकाला जाता है, बट वो भी एक दिन में नहीं निकलता है, टाइम लगता है। जो साइकोथेरेपी किए हैं वो भी जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड टेक्निक सिखाई जाती है। बिलीव मी फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड टेक्निक एकदम बोले ना, राम बोलते राम की दवा, ये वो राम की दवा है। और जो प्राणी किलर्स नहीं है उनके लिए मैं उसका एक छोटा सा वर्जन दे सकता हूँ, जो एक नॉर्मल आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको डीपली अपने सिस्टम से ठीक करना है तो आपको साइकोथेरेपी सीखना है। आप प्राणिक साइकोथेरेपी सीखिए, उसमें आपको डीपली अपने सिस्टम से निकालना सीखने मिलेगा। और जब आप रतिक योगा करोगे और डीप अपने अंदर से निकाल सकते हो। जितना उसको निकालोगे उतना आपका सिचुएशन अच्छा होने लग जाएगा। दूसरा बोलते हैं जेनरोसिटी, उदारता। हम लोगों के अंदर में उदारता होनी चाहिए। उदारता माने हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। एक बात पूछता हूं आप लोग सबसे, हम लोग रोज खाना खाते हैं, यस? रोज पानी पीते हैं, यस? और अगर हम रोज खाना और रोज पानी पीते रहे तो क्या होगा? मतलब समझ रहे हो आप? मैं खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, बट देर इज नो टॉयलेट। आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो ऐसा हो गया, खाली खाता है और पीता है, बाहर निकालने का कोई सिस्टम ही नहीं है आपके बॉडी के अंदर में। क्या होगा? कुछ होगा गड़बड़। फटाफट चैट में लिखिए, भेजिए, कुछ होगा आपके अंदर में। क्या है, क्या होने वाला है? बिग प्रॉब्लम, यस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये एक साइकिल है, हम लिए और हम छोड़े। वैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम खाली ऑक्सीजन लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में सिस्टम में बैठ जाएगा एंड देयर इज डेथ। तो सिमिलरली हम लोग लाइफ में खाली लेना 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 ही जानते हैं, देना कब सीखेंगे? आप किसी भी ग्रंथ में चले जाओ, किसी भी रिलीजन में चले जाओ, हर जगह देने के बारे में बताया गया है कि आप जो भी कमाते हो, जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा आपको दान करना चाहिए। ये ऑब्लिगेशंस होता है, इसको बोलते हैं कार्मिक ऑब्लिगेशंस होता है। इसके बारे में हम लोग लास्ट सीरीज में बात करेंगे। आज हम लोग इस पॉइंट पे बात करते हैं, लास्ट सीरीज में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कार्मिक ऑब्लिगेशंस होते कैसे हैं, क्या होते हैं और कैसे उसको हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। यस। सो हम लोग को अगर पैसे, सिंपल था, लॉ ऑफ कर्मा अगर हम लोग सीख गए कि जैसा बीज बोएंगे वैसा मिलेगा, तो अगर हमारे को अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है और जिसमें अपने को लगता है कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है, या हमको लगता है कि मेरे लाइफ में पैसे का फ्लो अच्छा होना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, क्या करना पड़ेगा? आपको डोनेट करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे से एक हिस्सा देना पड़ेगा। और इसको आप सिंपली समझने का कोशिश कीजिए, एक सिंपल समझने का कोशिश कीजिए। जब आप कुछ चाहिए रहता है तो आप क्या करते हो? भगवान से प्रे करते हो ना, करते हो? इसका मतलब है जब आप भगवान से प्रे करते हो तो उसको पार्टनर बनाते हो ना अपने लाइफ में, बनाते हो ना। तो जब आपको मिल जाता है तो उस पार्टनर को तो भूल जाते हैं ना हम लोग। यही अगर आप कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप के अंदर में, तो शेयर करते हैं ना हम लोग, वहां तो 50-50 शेयर करते हैं। यहाँ तो भगवान बोलता है मेरे साथ 50-50 मत करो,
कुछ हिस्सा दे दो मेरे को। इस्लाम में शायद 33% देने का बात बोलते हैं, अपने सिख के अंदर में 10 दशानंद बोलते हैं, 10वां हिस्सा देने के लिए बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं। तो हर धर्म में देखिए कहीं ना कहीं एक बात बोला जा रहा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, देना है, ये देने की एटीट्यूड भी लानी पड़ेगी। हम लोग खाली मांगने जाते हैं, और यहाँ पर जब हम देते हैं, किसको देते हैं? तो इसको भी आप कैसे समझ सकते हो? आपके अंदर में भगवान है? आपके अंदर में भगवान है कि नहीं है? आपके अंदर में है भगवान? यस। अच्छा, बाकी जो दूसरे इंसान हैं यहाँ पर पूरे स्क्रीन में, उनके अंदर में भगवान है? तो आप किसी की भी मदद करते हो, आप किसकी मदद कर रहे हो? किसका हिस्सा दे रहे हो? भगवान का हिस्सा उसको जाके दे रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में क्या लिखा है? तुम कर्म कर, फल की आशा मत कर। किससे कर? मुझसे कर। उसका ना वो भेजेगा ना किसी को आपके लाइफ में। तो आप भी किसी के लाइफ में जा रहे हो, वो बोल रहा है आपको जाओ उसको दे के आओ, बट आप बोलते नहीं मैं तो नहीं देने जाने वाला। नहीं, आपको देने जाना है। तब आप सोचिए ऊपर का बुलावा आ रहा है, वो पार्टनर बोल रहा है कि मेरा पैसा जो है उसको दे के आ जाओ। वहां भूल जाते हैं हम लोग, वहां बोलते हैं अरे नहीं बेवकूफ थोड़ी, पागल थोड़ी इस तरह से पैसा दे देंगे। हाँ, आप पागल नहीं हो, आपको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर विजडम। और विजडम यूज करने के लिए क्या है? आपको अपना मेंटल बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मेंटल बॉडी को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं? इसका पूरा सॉल्यूशन जो है आपको प्राणिक हीलिंग में दिया जाता है। साइकोथेरेपी में जाएंगे, आरतिक योगा करेंगे, उन सब मेंटल बॉडी को कैसे स्ट्रांग किया जाता है वो सिखाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो आपको समझना होगा। और आप नहीं समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास कीजिए और फिर हमारे पास आइए, फिर और समझा देंगे आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, वी ऑल आर समवेयर कनेक्टेड विथ ईच अदर। आज मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, ऐसे फिजिकली नहीं जानता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं जानता हूँ, बट समवेयर वी आर बीन कनेक्टेड बाय पास्ट। तभी आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आप सुनने के लिए आ गए। आप दुनिया के कुछ कोने में, मेरे को ये भी नहीं मालूम है, आपका नाम भी नहीं मालूम है, बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ के अंदर में है। और मेरी आवाज को अभी आप सुन के आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर में कितना कॉन्फिडेंस है। जिस बात को मैं बोल रहा हूँ उसमें इतना मेरे को दम मालूम है। ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को ये बात बताया है, बट ये इसलिए क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए बोलता हूँ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आई बिलीव दैट वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। इट्स ओनली दैट वी हैव टू लुक विद इन अस। हम लोग को अपने अंदर में देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना सीखना पड़ेगा। अगर आपको पैसे से अपने लाइफ का डेस्टिनी चेंज करना है, पैसे की डेस्टिनी चेंज करनी है, तो आपको सबसे पहला बात है चोरी करना बंद करना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ चोरी करना बंद करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लोग चोर हैं, अपने लोग चोर नहीं है, बट जाने अनजाने में छोटी छोटी चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। सबसे पहला, अभी तो बहुत इजी हो गया ना, इंटरनेट होने के बाद और इजी हो गया। शुरू में आपको ध्यान होगा बहुत जन ऐसे हैं जो लोग कंप्यूटर तो खरीद लेते थे, बट उसके अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से सब पायरेटेड होता था। अगर हम लोग सोचने का कोशिश करें, अगर हम लोग ये चीज सोचने का कोशिश करें कि जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया उसका भी तो रिसर्च डिपार्टमेंट होगा ना, उस रिसर्च डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, वो उसको पैसा देता है, तो वो प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट का हम 1 रुपया भी नहीं दिए उसको। हम लोग भी तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद वो एक आइडिया बनता है, बट उस आइडिया का कोई अपने को पे नहीं करता तो कितना खराब लगता है अपने को कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना। हम लोग सबके पास टाइम तो लिमिटेड है, यस और नो? तो उस टाइम का एक वैल्यू तो होगा, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग प्रोफेशनल लोग के साथ कैसे बिहेव करते हैं पता नहीं, इंडिया के अंदर में तो कहीं ना कहीं देखते हैं प्रोफेशनल लोग के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहाँ पर है, परंतु उसके बाद
अगर उसे कंसल्टेंसी लेना होता है तो फोन पे ले लेते हैं, घर वाला ही तो है, फोन पे कंसल्टेंसी ले लेते तो पैसा नहीं देते हैं उसको। पैसा मांग ले, वो बोल दे कि भैया 5,000 रुपया मेरा फीस है, तो आपने बोलते हैं है, वो दूसरा वाला तो 1,000 रुपया में कर देता है, या 5,000 का बिल कर दे तो हम 1,000 रुपया देते हैं उसको, ज्यादा मांग रहा है तुम। तो ये क्या है? हम लोग हर जगह जाके बार्गेनिंग करना चालू कर देते हैं। ये क्या है? ये हमारा अंदर का कॉन्शियसनेस है। वो वर्ड्स में यूज नहीं करूंगा, वो हम लोग क्लासेस में यूज करते हैं। आप समझ पा रहे हो ना? तो इस जगह आपको इम्प्रूव करना है। यूट्यूब में जाते हैं, वो जो मूवी बनती है जिसका इतना इतना रुपया लगता है, उसको हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। मैं अभी कुछ टाइम आगे फ्लाइट में जा रहा था, तो एक जन ने देखा, अरे वो तो इतना सारा डाउनलोड करके रखा। मैं सोचा कि अभी तो ऑनलाइन देख रहा होगा, बाद में मेरे को ध्यान आया, अरे ऑनलाइन तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, तो देख कैसे रहा है? वो सब डाउनलोड करके रखा है सिस्टम में। तो वहां पर कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं। अभी नया मूवी आया, उसको डाउनलोड करके रख लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो मूवी बना उसके लिए कितना करोड़ों रुपया खर्चे हुए, और हम, कितना रुपया लगता है? 100 रुपया, 150 रुपया लगता है। आजकल तो ऑनलाइन 100-150 रुपया में आ जाती है, परंतु हम लोग क्या करते हैं? डाउनलोड करके रखते हैं। तो ये स्टीलिंग नहीं है तो और क्या है? कभी कभी क्या होता है, कोई अपना अपना आइडिया आपके साथ शेयर करता है, और अपने क्या करते हैं, वो उस आइडिया को अपने लोग अपना बना के यूज कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है? उसके बाद सच बोलना। हम लोग को लगता है कि सच बोलेंगे तो गए काम से, तो धीरे धीरे हमारी हैबिट ही हो गई। कोई आउट ऑफ फियर झूठ बोल देता है, कोई किसी चीज के कारण झूठ बोल देता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं बार बार, तो हम किसी की आंख के सामने पर्दा डाल रहे हैं ना, तो हमारे आंख के सामने भी कोई ना कोई पर्दा डाल देगा। कि जैसा बीज बो रहे हैं, हम किसी की आंख के सामने पर्दा डाल रहे हैं, इसी का तो बीज बो रहे हैं ना। तो कभी क्रुशियल टाइम आएगा तो उस समय मेरे आंख के सामने भी ऐसा होने वाला है। तो अभी से हमको क्या करना है? नहीं बोलना है झूठ। हाँ, परंतु कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम लोग बोल सकते हैं, परंतु वहां पर भी अगर बोलेंगे तो तरीके से बोलना होगा जिससे हर्ट नहीं हो, और कोशिश करेंगे नहीं बोले। फिर मैंने शुरू में बात ही कर चुका आप लोगों को, हम लोग अपने फिजिकल बॉडी से कितना प्यार करते हैं। लेजीनेस भरा हुआ है। मॉर्निंग में कौन एक्सरसाइज करेगा यार, कल बहुत ज्यादा देर तक सो लिए यार, और अरे रात को बहुत लेट हो गया था, छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं है। यही तो मन में आता है ना, या टाइम से सो गए थे, अरे एक दिन के लिए सो लेने दो ना, क्या जाता है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। ऐसे ही तो मन करता है अपना। क्या करते हैं, हर चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ में लाइफ में भी तो दूसरे लोग ऐसे ही करते हैं। उनको काम बोलते हैं, बोलते कल कर लेंगे, फिर बोलते हैं कल कर लेंगे। सो लेजीनेस नहीं होना चाहिए, लेजीनेस को खत्म करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, बट एवरीथिंग इज एनर्जी। लेजीनेस भी एक एनर्जी है। लव भी एक एनर्जी है, एंगर भी एक एनर्जी है। ये सब एक एनर्जी है। इन सब एनर्जी को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट इस कन्वर्ट को करने के लिए हमारे अंदर में इनर स्ट्रेंथ होना चाहिए। हमारे अंदर में इनर स्ट्रेंथ होना चाहिए। वो इनर स्ट्रेंथ आता कैसे मालूम है आपको? एक सिंपल टेक्निक है, एक सिंपल टेक्निक है जिससे वो इनर स्ट्रेंथ आप ला सकते हो। जो आपके अंदर में विचार आ रहे हैं, वो विचार आपके हैं। आपको आप सोच लेते हैं कि आपको उसको खत्म करना है, तो कितना इजी है। माइंड आप हैं, नहीं है। इमोशंस आप हैं, नहीं है। आपको उसको खत्म करना है, तो कंट्रोल आपके पास है कि उसके पास है? हम लोग ये लेजीनेस और इन सब चीजों में फंसने के कारण
कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। हमारी लाइफ की बागडोर जो है उसके हाथ में होनी चाहिए, बट हम लोग उसको इसके हाथ में दे देते हैं। तो उसी से बाहर निकलना है। उसके बाद देखिए दुनिया कितनी मस्त है। एक छोटा सा टेक्निक करते हैं अपने लोग, कोई भी एक, समझ लीजिए कोई एक लाइफ में आपका, आप अपनी लाइफ में फटाफट चैट में लिखिए ना एक पर्टिकुलर कोई चीज जो आप चाहते हैं कि वो आपके अंदर से निकले, जो आप चाहते हैं वो आपके अंदर से निकले, कोई एक चीज। तो अपनी एक टेक्निक फॉलो करते हैं। बैक पेन, मैं यहाँ पे पेन का बात ही नहीं कर रहा था, उसके लिए तो हम लोग को हीलिंग क्लासेस होती है। मैं यहाँ पे पेन का बात नहीं कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कि जो हम लोग हाँ, फियर, लेजीनेस, यस, जेलसी, गुड, इस तरह की चीजें, क्योंकि हमको अपना डेस्टिनी चेंज करना है। पेन तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो आने जाने वाला काम है उसके अंदर में, उसमें कुछ नहीं है। सिंपल सा हीलिंग सीख लीजिए, साफ कीजिए, हो जाएगा ठीक। उसके लिए हम लोग फिर एक तो सेशन ले लेंगे कि हीलिंग कैसे किया जाता है। ओके, एंगर, चलिए मैक्सिमम लोग बोलते हैं एंगर, हेट्रेड, कर्सिंग, तो अपने एंगर को लेते हैं। एक ये छोटा सा टेक्निक शेयर कर रहे हैं, ये हमारे प्राणिक हीलिंग का टेक्निक नहीं है, बट प्राणिक हीलिंग में इसका मल्टीपल टाइम्स टेक्निक मिलता है। मैं छोटा इसलिए वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हो कि अगर वो फॉलो करते हैं तो अगर आपको इतना बड़ा चेंज मिलता है, तो आप अगर प्राणिक हीलिंग के अंदर मैं जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड टेक्निक, और जो अरबिक योगा के अंदर में हम लोग करते हैं ब्लू ट्रायंगल टेक्निक्स, ये सब जो टेक्निक्स है ना, वो आपको कितना मल्टीपल फुल टाइम्स आपको हेल्प करने वाली है। तो राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगर के लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हर इंसान को कहीं ना कहीं एंगर तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कोरिलेट करेंगे उस एंगर को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ। इस पूरे ग्रुप के अंदर में कितने जन प्राणी किलर्स हैं? रेज योर हैंड फटाफट, कितने लोग प्राणी किलर्स हैं? फटाफट रेज योर हैंड्स, रिएक्शन मोड से कीजिए जिससे मेरे को पता चल जाए कितने लोग हैं, क्योंकि मेरे को इजी रहेगा अगर प्राणी किलर्स लोग भी हैं यहाँ पर, तो मेरे को इजी रहेगा जब मैं ये टेक्निक शेयर करूंगा, तो जो प्राणी किलर्स लोग हैं वो लोग भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इतना छोटा सा टेक्निक करने से भी कितना फायदा होता है, और दे कैन कोरिलेट कि प्राणी किलिंग में जो टेक्निक्स है वो और कितनी पावरफुल है। ओके, ओके, मोटा मोटी 50% लोग प्राणी किलर्स है, 50% प्राणी किलर्स नहीं है, नो डाउट, नो। तो जो प्राणी किलर्स नहीं है वो भी परंतु ये टेक्निक को रेगुलरली कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस क्लोज आवर आईज, just close your eyes, be aware of your heart, smile at your heart, smile at your crown, visualize yourself in front of a boiling water. It's not a boiling water, it's like a boiling ocean. जैसे अगर हम लोग होलिका में जाते हैं, होलिका दहन होती है, तो सामने में एक पूरी अग्नि रहती है, तो यू कैन ऑल्सो विजुलाइज इन फ्रंट ऑफ यू दैट अग्नि हवन कुंड। अगर आपको ओशन नहीं दिख रहा है तो आपको, अगर ओशन नहीं दिखता है तो आप हवन कुंड देख लीजिए अपने सामने में। नाउ बी अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन ऑफ लाइफ। उस सिचुएशन अपने लाइफ में जाइए जिस सिचुएशन में आपको बहुत एंगर आता है। Try to visualize that situation when you have a lot of anger. Just slowly and gradually go to that situation when you are having too much anger in you. Maybe that may be a situation when someone does not accept you, or someone just repel you.
Maybe that situation, maybe someone don't want to understand you, or you feel that your respect has been lost, even though it's not the truth. Maybe you tried hard to make yourself understand to other person. At that some time you develop anger within you. Now just be aware that this anger is just an energy, and this energy is coming out of your body. The energy of anger is coming out of your body, and you as a spiritual being say, I the soul, I am not these emotions of anger. I let go this anger into this boiling ocean, into this fire. I let go, I let go. With the help and the blessing of God, I let go these energies of anger within me. I, the soul, with the help and the blessing of God, completely erase the situation of my life. I, the soul, I let go the situation of life into this boiling ocean, into this boiling ocean, into this boiling ocean, into this fire. I let go, I let go, I let go. Just let go. Now just visualize that boiling ocean is converted into a simple ocean. The ocean has a very cooling effect. It has cooled down and it has very cooling effect. That fire is completely gone. Now you are at some beach, sea water, and you are taking bath in that sea water. That sea water is with the water has salt in it, and you are taking bath in that salt water. Any dirty diseased energies, congested energies, contaminated energies in the body because of anger, any blockages are being released in the sea water. Now you are coming out of the sea water and you are just folding your hands in front of the sea water, and there is a bright sun, and pray to the sun, to Lord God, and you visualize the situation is changing in your life. Even in that situation, you are very calm, you are cool, and because you are calm and cool, no one is able to instigate in you again the same anger, and you have broken the chain of anger. Because you have done the right thing, you have sown the seed of love, peace, and calmness. Your life, your destiny, is being changed, and you are attracting calm, peace.
in your life. With God's blessings, so be it. With God's blessings, so be it. With God's blessings, so be it. With thanks and full faith, so be it. Slowly and gradually open your eyes. So any difference? Anyone wants to share something? If anyone wants to share something, then can unmute oneself and say. Hello, sir. Yes. Hello. Hello. So since 2-3 days, I have been experiencing anger and hatred actually, and Okay. very much frustration. I was praying to Master ki please do something, and through someone calm me down because I was trying my best to calm myself, but I was not able to. I needed someone to calm me down. Today you have done it. Master sent you to me. It's wow. Thank you so much. Thank You are you. an angel. It's all master's gifts. Yes. Thank you. And anyone else wants to say something? Anyone else among anyone who has not done pranic healing wants to say something, has experienced something? I think no one wants to speak anything. Huh? Okay. So now, since we have understood the law of karma and now we have understood this, one more thing is that uh, another one more thing we have to understand is we have made mistakes. तो अगर हम लोग कभी भी कोई गलती करते हैं तो गलती करने का मतलब क्या होता है? बस गलती कर दी, हो गया, खत्म? या गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं? माफी मांगते हैं ना? और उसी तरह से कोई और गलती करता है, क्योंकि अगर समझ लीजिए हम लोग अभी एंगर के बारे में बात किए, तो अगर मेरे अंदर में एंगर आया तो मैं एंगर में कुछ गलत बातें भी तो बोल दिया। गलती उसकी भी थी कि वो मेरे अंदर में एंगर क्रिएट किया, बट मैं भी तो कुछ गलत बातें बोल दिया। तो मैं डिफेंड करूंगा कि वो उसने ऐसा किया, उस कारण से मेरे को गुस्सा आ गया, बट वी कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन। एंगर इसलिए आया क्योंकि मेरे अंदर में एंगर एनर्जी थी, इसीलिए आ गया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके फॉरगिवनेस मांग लेते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर हम फॉरगिवनेस का बीज बोएंगे तभी हमको फॉरगिवनेस मिलेगा। और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, अपने दिल से, आपको अपने दिल से माफ करना पड़ेगा। तो बहुत भारी होता है, बट दिल से। नॉर्मली कोई गलत करता है तो अपने क्या करते हैं, अपने कहीं ना कहीं बोलते हैं कर्मा तो है, जब कर्मा सीख जाते हैं तो बोलते हैं कर्मा तो है, तुम भी देखना तेरे साथ क्या होगा, दिस इज अ कर्स। सो टू थिंग, यू हैव टू फॉरगिव, you have to ask forgiveness, but at the same time you have to, even that time also you have to bless। आप कर्ज नहीं कर सकते, आपको तभी भी ब्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए ट्यून हार्ट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ट्यून हार्ट मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो वी ब्लेस। क्या हम लोग सिर्फ पृथ्वी को ब्लेस करते हैं? तो सभी प्राणियों को ब्लेस करते हैं, तो क्या उस प्राणियों में हम लोग नहीं होते हैं क्या? वी आर ऑल्सो देयर ना, वी आर ऑल्सो देयर। तो हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी ब्लेस करते हैं उसको। तो हम भी हैं, वो भी है, सभी हैं, सबको ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ फॉरगिवनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू इवन ब्लेस, एंड देन वी हैव टू ऑल्सो लर्न आवर लेसन। इस सिचुएशन में मेरे को क्या सीखना था? हो सकता है उस सिचुएशन में मेरे को कामनेस सीखना पड़ेगा।
तो अगर मेरे को कामनेस सीखना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू ब्रिंग कामनेस इन माई लाइफ। जैसे आप अपनी लाइफ में कामनेस लाना चालू कर दोगे, इमीडिएटली एवरी सिचुएशन विल चेंज। हो सकता है कि आई हैव टू लर्न टू लव मोर, आई हैव टू लर्न टू हैव मोर पेशेंस। तो हमको सामने वाला कितना भी कुछ बोले, हमको अपने अंदर में पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। एंड वंस यू डेवलप दैट पेशेंस, बिलीव मी फ्रेंड्स, सामने वाला दिल से आपको माफ भी कर देगा और वापस वो वैसा ही हो जाएगा। आई थिंक वैसा भी नहीं, उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर में एक लेसन सीखे कि नहीं, मेरे को पेशेंस रखना है, मेरे को पेशेंस रखना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना है, क्या सीखना है। तो दिस थ्री थिंग्स अगर आप करने लग जाते हो तो सिंपल सा बात है, गॉड विल पे यू, ही विल नॉट पनिश यू। हम लोग को डर लगता है गॉड विल पनिश, बट नेवर, ही विल नेवर पनिश, ही विल जस्ट पे यू। हमारे बच्चे गलतियां करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, बार बार करते हैं, तब हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ता है। क्या हम पनिश करते हैं? क्या रॉन्ग हार्ट के साथ में पनिश करते हैं? नहीं, हम लोग अपने हार्ट से भी पनिश करते हैं। माने हम लोग अपने दिल से उसको बद्दुआ नहीं देते हैं, हम लोग अपने दिल से इसको स्ट्रांग बनाने का कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन करने का कोशिश करते हैं। बट उसमें भी हमको हर्ट होता है कि क्यों थोड़ा सा लीनियंट हो जाए हम, फिर भी हमको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है जिससे कि वो डिसिप्लिन हो जाए लाइफ में। बट जहां आपको लगने लग जाए कि वो डिसिप्लिन होने लग जाता है, तो आप क्या करते हो? आप थोड़ा लीनियंट होने लग जाते हो ना। इसका मतलब क्या है कि वो पनिशमेंट, जिसको हम लोग पनिशमेंट समझते हैं, वो पनिशमेंट नहीं रहता है। तो गॉड भी है, गॉड कभी पनिश नहीं करता, वो जस्ट देखता है कि आप सीख रहे हो कि नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर जस्ट चाइल्ड ऑफ गॉड। सो वी हैव टू फॉरगिव, वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस, वी हैव टू ब्लेस। सो आज अब जो हम लोग ट्यून हार्ट मेडिटेशन करने जाएंगे, जो ट्यून हार्ट मेडिटेशन जो है, प्लीज आप से सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ लोग इधर उधर भागना चालू कर दिए हैं, बट प्लीज बी विथ मी। वी विल डू for 15 minutes, we will do the forgiveness, we will do blessings in twin heart meditation, and at the same time we will ask for blessings. Okay, at the same time we will ask for blessings, because next जो हम लोगों का सीरीज में लास्ट होने वाला है, we will be doing divine healing, we will be doing divine healing. And फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम लोग वो डिवाइन हीलिंग करेंगे, तो नेक्स्ट वीक में आप कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको लेके आने का। क्योंकि जब हम लोग डिवाइन हीलिंग करेंगे, वी विल हील फॉर आवर सेल्फ, वी विल हील फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। इवन आप प्राणी किलर्स नहीं है तो भी आप कर सकेंगे। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, अपने आप के लोगों का हीलिंग कर सकते हैं। तो वी विल लर्न हाउ टू डू हीलिंग। क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग कर्मा के बारे में, ग्रुप कर्मा के बारे में भी बात करेंगे। तो ये ग्रुप कर्मा है जिससे हम लोग को बाहर निकलना है। तो जितना हम लोग इस ग्रुप, ऐसा ग्रुप में करेंगे, उतना हम लोग ऐसा कर्मा क्रिएट करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन वी हील अदर्स, वी विल बी ब्लेस्ड विद हीलिंग्स। तो अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं हीलिंग का, तो हम लोग को भी हील होगा। यस, सो लेट्स स्टार्ट। Smile at your heart. Think of a happy moment, the moment of life when we felt the worth of ourselves, the worth of our life. Smile at your heart. Be aware of your crown. Be aware of situations of life, the events when you have been an instrument of making people around you feel worth, have worth.
You made them feel put your hands together on your heart to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Divine Providence, with the blessing of whom everything is possible. Thank you for your priceless blessings, for your divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, with inner healing, physical healing, with the inner strength to do what is right and refrain from unwholesome thoughts, actions, and behavior. With divine help and divine protection, with illumination, abundance, prosperity, with wisdom, discernment, goodwill, and the will to do good. To all the spiritual gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, thank you all for your priceless blessings. With your blessings, everything is possible. I am not this body, I am not these emotions, I am not this thought. I am not this mind. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, and divine power. I am one with my higher self. I am a child of God, connected with God, one with God and one with all. Raise your hand in the blessing position. Visualize Earth as a small ball in front of you. Every person, every being on Mother Earth, including oneself, including all those who have hurt us or whom we have hurt. From the heart of God, the energies of love, peace, harmony, understanding, reconciliation, forgiveness, patience, tolerance, understanding, life, hope, faith, trust, coming down into the soul, through our heart, through our hands, going down into Mother Earth. And every person, every being is being blessed with light, love, peace, harmony, understanding, reconciliation, forgiveness, patience, hope, faith, trust. Every person, all those whom we have hurt or who has hurt us are being blessed with pink energies. Everyone's auras and chakras are being filled with these pink energies. Be aware of your crown. The crown is on the top of your head. Loving kindness and goodwill and the will to do good from the heart of God coming down into the soul, through our crown, through our heart, through our hands. It's going down into Mother Earth. Every person, every being is being blessed with loving kindness, goodwill, and the will to do good. Everyone is not only talking about doing something good, but actually they are acting out this goodness. खाली बातें नहीं कर रहे हैं, but actually उसको कर भी रहे हैं. खाली लोग फॉरगिव कर देने के बारे में बात नहीं कर रहे, बट एक्चुअली वो फॉरगिव कर रहे हैं. खाली लेट गो करने के बारे में बोल नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली में लेट गो कर रहे हैं. वो खाली अच्छा बनने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा बन रहे हैं. खाली हेल्प करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट वो हेल्प कर रहे हैं. खाली हीलिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हीलिंग कर रहे हैं.
लव करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली लव कर रहे हैं. Be aware of your heart chakra and crown chakra. Energies of divine oneness, bliss, good health, happiness, prosperity, abundance, tenderness, caring, warmness from the heart of God. It's coming down into the soul, into the crown, into the heart chakra, through the hand is going down into Mother Earth. Every person, every being. Be aware of the heart chakra, crown chakra. Golden pink energies from the hand is going onto the entire earth. Every person, every being has been filled with this golden pink energies. All those who have hurt us or whom we have hurt, their auras and chakras are filled with this golden pink energies. Put your hands together on the heart. Visualize all those whom we have hurt or those who have hurt us are converting into a brilliant light. So Atma Namaste to all of you. I, the soul, with the help and the blessing of the Supreme God, forgive you all for your hurt and pain you have given to me. I, the soul, with the help and the blessing of the Supreme God, forgive you all for not being the way I wanted you all to be. You all are forgiven and the matter is forgotten. With the blessing of God, the realization of my mistakes, I, the soul, ask for forgiveness, sincerely apologize for my mistakes, sincerely apologize for not being the way you wanted me to be. Please forgive me and let go of the matter. May the Supreme Being bless us with divine forgiveness. May the Supreme Being neutralize our negative karma. May peace be with you all and me. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. I forgive you all, please forgive me. 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 I let go, I let go, I let go. I completely let go. Cut, cut, cut. Put your hands down. Be aware of 1 feet above your head. Visualize the star 1 feet above your head. Energies of love, energies of peace, energies of harmony, energies of faith, trust, hope, good health, happiness, success. It's coming through this light. Be aware of this light, visualize this light. Be aware of the gap between the two.
Stay, be aware, and let go. Slowly and gradually come back to the body. Come back to the body. Move your fingers. Move your hands. Move your feet. Move your hands. Move your feet. Raise your hand in the blessing position. We will bless the entire earth, every person, every being. We will bless the situations right now in the entire world with one great invocation. The great invocation from the point of light within the mind of God. Let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. Let light descend on every person, every being. So be it. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. Let love descend on every person, every being. May the great avatar return to earth. So be it. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of every person, every being.
The purpose which the Holy Masters know and serve. Let goodwill and the will to do good descend on earth. Let goodwill and the will to do good descends on every person, everything. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out and may it seal the door wherever it does. Let light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Let light, love, and power descend on entire country and the entire world and manifest the divine plan. Let light, love, and power descend on our family, our friends, cities, our neighborhoods, and manifest the divine plan. May all those who are suffering right now be healed rapidly and properly. May all of them get recovered rapidly and properly. May all of them get the right treatment on the right time. May all the health workers be blessed with right guidance, help, and protection. So be it, so be it, so be it. With God's blessings, so be it. Stabilize, stabilize, stabilize. Be aware of the base of the spine, be aware of your feet, visualize light going down, down, down into Mother Earth. 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, and spreading in all the right, which is spreading, spreading, and spreading. Mother Earth, bless you, divine light, divine love, and divine power. Mother, regenerated, revitalized, and regenerated. So be it, so be it, so be it. Put your hands together on your heart. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Divine Providence, with the blessing of whom everything is possible. Thank you for your priceless blessings. To all the spiritual gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, thank you all for your priceless blessings. With thanks and with lots of gratitude, respect, and love. Thank you. सो एक बार सबका वीडियो ऑन हो जाए. हम लोग बोले ना कुछ स्पेशल करेंगे हम लोग. एक बार सबका वीडियो ऑन हो जाए. सबका वीडियो ऑन हो जाए. Hope everyone enjoyed. Yes. अभी भी सबका नहीं ऑन हुआ है. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. अब थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. Yes. I request everyone, please switch on your videos. Please. प्लीज एटलीस्ट मेरे सामने वाला स्क्रीन तो मेरे को दिखे, सब लोग हैं यहाँ पे. ओके. सो अभी भी सब लोग वीडियो ऑन नहीं किए. अच्छा, जिनको दिक्कत है ऑन करने में, माने नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मत कीजिए. बाकी सब तो कर लीजिए. सब 1.5 घंटा तक मेरा चेहरा देख लिए. आपका चेहरा देख लेंगे तो थोड़ी कुछ हो जाएगा. 1.5 घंटे में मेरे चेहरे को वो नहीं हुआ. आपके चेहरे देख लेंगे तो उल्टा और ब्लेसिंग्स मिल जाएगी सबको. कम से कम ब्लेसिंग देने के लिए आ जाइए. देखिए 1.5 घंटा तक बोलता गया हूँ, बोलता गया हूँ, बोलता गया हूँ. पर थोड़ा आपका चेहरा दिख जाएगा तो क्या होगा. सो मजा आया. ओके. तो मजा आया तो हम लोग कैसे करते हैं. मजा आता है तो कैसे करते हैं. ऐसे करते हैं. ठेंगा. ऐसे ठेंगा करेंगे. ऐसे करेंगे. ओके.
सो क्या लगता है हम लोग डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं अपनी? यस यस इसका मतलब हम लोग को विक्ट्री मिल सकती है? जी मास्टर। विक्ट्री मिल सकती है, ओके। सो विक्ट्री मिल सकती है तो कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं, ऐसे, ओके। तो हम लोग की फोटो खींची जाएगी यहाँ पे। हम लोग ऐसे करके रखते हैं, देखिए मेरे पीछे मास्टर भी हैं, हीलिंग एंजल्स भी हैं, मैं भी हूँ। देखिए कितना फर्स्ट क्लास है। मेरे विक्ट्री को मास्टर और हीलिंग एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग सबके विक्ट्री को सपोर्ट करेंगे। यस, तो फटाफट एक फोटो हो जाए। हो गया प्यारी, हो गया। यस, फोटो सबका निकल गया है, सबका फोटो खींच गया है। बोलते हैं ना फोटो, एक तो गाना है ना, फोटो खींच लो, कि ऐसा कुछ गाना है, याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो अगली बार बताएंगे। सो रिक्वेस्ट आप लोग सबसे है कि लास्ट जो सेशन है नेक्स्ट वीक, उसमें कोशिश कीजिए कि हम लोग कम से कम 100 पार्टिसिपेंट रहें, जिससे कि वो डिवाइन हीलिंग जब करेंगे तो उसकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग रहे। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वी विल कम अप विथ सच डिवाइन हीलिंग फॉर एवरीवन, प्राणी किलर्स, नॉन प्राणी किलर्स, सबके लिए एटलीस्ट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, so that we all can become an instrument। और नेक्स्ट वीक में हम लोग बातें करेंगे, जैसे हमने डोनेशन के बारे में बात की है अब कि आज, तो वैसे ही वो सर्विस होती है कि हम लोग को सर्विस का कर्मा जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग हीलिंग का कर्मा जनरेट कर सकते हैं अपने लाइफ में, बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग। सो विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू हेल्प एंड ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल नेक्स्ट टाइम फॉर डिवाइन हीलिंग। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वी विल मोर फोकस ऑन हीलिंग। तो आज जैसे 1.5 घंटा में 1 घंटा 15 मिनट में बात किया, और उस समय में अपने क्या करेंगे, 1 घंटा अपने हीलिंग करेंगे एंड 30 मिनट्स वी विल टॉक अबाउट द ग्रुप कर्मा। ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेजेंस। आप अपना समय दिए उसके लिए थैंक यू ऑल।